Chapter 13, Trial Balance. Yesterday also we studied about trial balance. Today I am revising some of the concepts. Trial balance में हमारे जितने भी assets and expenses will be there, they will be debited, and capital, liabilities and revenues, they will have credit balance. Should I write it again for you? We have devised a trick. We are always using this trick. What is that trick with us? The trick is we are writing clear, and in the word clear, assets and expenses E and A will have debit balance and C, L and R will have credit balance. This way we are doing it. Okay. Now moving on to the question. Question number 1 in the book. Prepare a trial balance with the following information. Serial number, name of the account and balance is given to us. Very easily we can make the trial balance. We will make the format of the trial balance. Trial balance, serial number, heads of accounts, debit and credit. So first item given to us is capital. We will be writing capital 2 lakh rupees and the balance will go in the credit side, 2 lakh rupees. Then the second item given to us is stock. Stock is an asset. So asset will have debit balance. So we will write it in the debit side. Stock 70,000 rupees. Then cash, asset, debit balance, cash 1,80,000. Debtors again asset 3 lakh rupees, debtors 3 lakh rupees. Creditors are liabilities. Creditors in the liability side 1 lakh rupees. Bank loan liabilities 1,50,000 in the credit side. Sales are revenues, incomes. Incomes will come into the credit side 3 lakh rupees. Purchases are expense. Purchases 2 lakh rupees. Now we have posted all the items. After posting all the items, we will do the totaling. And total is coming equal 7,50,000 and in the credit side also 7,50,000. So this is a very easy question. I hope you have understood it very easily. Still any student has any doubt, you can ask me. Any doubt in this question? Yes. मैम हमारा बैंक लोन डेबिट में नहीं आ सकता? बैंक लोन डेबिट में, हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए वो लोन आएगा क्रेडिट साइड में. अगर लोन गिवन होता कि मैंने किसी को लोन दिया है, जैसे मैं कहूँ कि मैंने भावार्थ को लोन दिया हुआ है, तो वो तो मेरे लिए एक असेट हो जाएगी कि मुझे फ्यूचर में वो मिलने वाला है वापस अमाउंट, उस केस में वो डेबिट में जाएगा. पर जब मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, मुझे फ्यूचर में पे करना है उसे, तब वो लायबिलिटी होगी. अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, लोन टू मिस्टर ए, कि मिस्टर ए को मैंने लोन दिया हुआ है, तब वो जाएगा डेबिट साइड में. ओके मैम. ओके. यस, दिवांशु हैज रेज्ड हैंड. यस दिवांशु. सेल्स क्रेडिट में क्यों आया है? सेल्स क्रेडिट में इसलिए आया क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है, इनकम है हमारी. हमारी जो इनकम होती हैं, रेवेन्यूज होते हैं, कैपिटल होती है, लाइबिलिटीज होती है, वो सारी गेन्स जो होते हैं वो सारे हमारे क्रेडिट बैलेंसेस में जाते हैं और हमारे असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, ये सब चीजें डेबिट में जाते हैं. ये हमारा रूल है. सेल्स तो वो लायबिलिटी थोड़ी होगी, सेल्स तो हम कर रहे हैं ना. सेल्स लाइबिलिटी नहीं है, सेल्स हमारी इनकम है, रेवेन्यू है. क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स जाती हैं देखो. यस दिवांशु, क्रेडिट साइड में हमारी ये सारी आइटम्स जाती हैं. देखो मैं यहाँ पर लिख कर बता रही हूँ तुम्हें. क्रेडिट बैलेंसेस किस किस चीज के रहेंगे. हमारा जो कैपिटल है, लाइबिलिटीज हैं, रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज जो हमारी इनकम हो रही हैं, ठीक है, गेन्स जो हैं, इन सब चीज़ों के हमारे क्रेडिट बैलेंसेस आएंगे. तो जो सेल्स है
वो हमारा रेवेन्यू का पार्ट है, वो हमारा इनकम का पार्ट है, इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस में जाएगा. नाउ क्लियर? ओके मैम. ओके मैम. Okay. Now moving on to the next question, question number 2. Question number 2 will be just like a revision of your journal, ledger and trial balance. इसमें journal भी आएगा, इसमें ledger भी आ जाएगा, इसमें trial balance भी आ जाएगा, पूरा total revision हो जाएगा. ठीक है. अब question number 2 में they are saying that you need first you need to make the journal and then you will make the ledger and then you will make the trial balance. So for the entries of journal, you can speak, all of you can speak and you can give the answer. No GST is there. GST नहीं है, बिल्कुल simple question है. First, you will keep on raising hands. First transaction is Mohan commenced business with cash. Dhruv has already raised the hand. Even I have not read the transaction. Okay, yes, Dhruv, what will be the answer? Cash account debited to capital account. Cash account debited to capital account 1 lakh rupees. Very good. April 3 transaction, Raghav. And What purchases was- account debit Hmm. to cash account. Purchases account debited to cash account 5,000 rupees. Yes, Rishabh, April 4 transaction, sold goods to Gopal. Ma'am, Gopal account debit to sales account. Gopal to sales account 4,000 rupees. Very good. Subhanshi, April 10 transaction, bought goods from Ram. Purchases account debit to Ram account 8,000 rupees. Very good. April 15, paid trade expenses answer will be given by just a minute. Let me ask Satvik, आप बताइए इसका आंसर. पेड ट्रेड एक्सपेंसेस. Trade expenses account debit to cash account. Trade expenses account debited to cash account 2,000 rupees. Okay, very good. Now April 20 received cash from Gopal, discount allowed. Pranav, can you give the answer for this transaction? Received cash from Gopal. Discount allowed. Yes. Cash account debited, discount allowed account debited to Gopal's account. Very good. Cash account debited 3950. Discount allowed account debited 50 rupees to Gopal 4,000. Right? Now April 25 transaction Bhavarth. Bhavarth, give the answer. Paid wages 700. And wages account debit to cash account. Yes, 700 rupees. Okay, very good. April 27 transaction Vishakha, you give the answer. Paid to Ram in full settlement. राम को हमें देने थे. राम कहाँ है? राम से हमने गुड्स खरीदे थे 8,000 के और अब फुल सेटलमेंट में हमने राम को 7,700 रुपीज दे दिए हैं. विशाखा, क्या आंसर रहेगा इसका? आर यू देयर विशाखा? Many other students are raising hands. Vanshika has raised hand. Yes, Vanshika, tell me the answer. Ma'am, Ram account debit to discount received account. Ram account debited 7,700. उसके आगे क्या बताया? Ma'am, discount received account. Ram account debited, discount received account to discount received. नहीं वंशिका, देख राम जो है डेटर पूरे किसी और स्टूडेंट से पूछती हूँ अभी. ये शुभांशी बताओ.
Ram account debit 8,000 rupees to discount received 300 to cash account 7,700. वेरी गुड। राम जो है हमारे डेटर अब खत्म हो गए हैं। कितने से हमारे डेटर खत्म हो गए? पूरे 8,000 से। टू कैश अकाउंट कितना कैश गया हमारे बिजनेस से? 7,700। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमें कितने का डिस्काउंट मिल गया? वो हमारे लिए गेन है, हमारे लिए फायदा है। 300 का हमें डिस्काउंट मिल गया। सो एंट्री विल बी राम अकाउंट डेबिटेड 8,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 7,700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300। ठीक है, राम के आगे आप अकाउंट नहीं लगाएंगे। अब आ गया अप्रैल 30 पेड रेंट। Ayush has raised hand. Yes, Ayush, tell me, paid rent. Rent account debited to cash account. Rent account debited to cash account 1,500 rupees. Very good. Okay. Now we have made the journal. पूरा journal हमने discuss कर लिया, journal हमने बना लिया. Format will be like this in the books of Mohan: journal, date, particulars, ledger folio, debit, credit, amount, and then we will be writing the narration always. And to remind you again, जब भी हम लिखेंगे पहले ऊपर वाली हमने एंट्री लिखी कैश अकाउंट डेबिटेड, फिर इतना सा ये स्पेस छोड़ देंगे, उसके आगे जा करके लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और टू का हमेशा टी कैपिटल रहेगा, उसको स्मॉल नहीं करोगे। ठीक है, अब ये तो हमने जर्नल बना लिया। जर्नल के बाद अब इसकी लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। लेजर पोस्टिंग में भी आप लोग आंसर देंगे। जो स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे रहे हैं, इंटरेक्टिव नहीं है क्लास में, उन्हें बोलना है, बोलकर बताएंगे। सबसे पहली जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या जाएगा ये बताओ। अगर कैश का अकाउंट बना रही हूँ 1 lakh। ओके, वेरी गुड। जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगी तो मैं उसमें एंट्री पोस्ट करूंगी April 1 टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। और सेकेंड एस्पेक्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूंगी? Account credit 1 By lakh rupees. cash account 1 lakh rupees। बाय कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद April 3 की मेरे पास एंट्री है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में क्या लिखेंगे बताओ? Cash account 500। Cash account 5,000। वेरी गुड। परचेजेस अकाउंट में April 3 में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5,000, और कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे April 3 में? By purchase account 5,000। 5,000। बाय परचेजेस अकाउंट 5,000। वेरी गुड। April 4 की ट्रांजैक्शन में आ गए गोपाल टू सेल्स। गोपाल के अकाउंट में क्या लिखेंगे? To cash 4,000। टू कैश To sales। टू सेल्स अकाउंट 4,000 रुपीज। और सेल्स के अकाउंट में क्या लिखेंगे April 4 में? By purchases 4,000। By Gopal account। बाय गोपाल अकाउंट 4,000 रुपीज। ठीक है, जल्दबाजी में गलत नहीं करो कि हमें पहले बोलना आंसर और गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। April 10 की ट्रांजैक्शन है। April 10 है परचेजेस टू राम। परचेजेस के अकाउंट में क्या लिखेंगे? To Ram account। टू राम 8,000 रुपीज। और राम के अकाउंट में क्या लिखेंगे? By purchase Purchases account बाय 8,000। परचेजेस क्रेडिट साइड में लिखेंगे 8,000। ठीक है। April 15 की ट्रांजैक्शन है ट्रेड एक्सपेंसेस टू कैश। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या लिखेंगे? to cash account. To cash account। टू कैश अकाउंट 2,000। और कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? By trade expenses। By trade expenses। बाय ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज क्रेडिट साइड में लिख देंगे। वेरी गुड। अब ये एंट्री कंपाउंड एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे? Gopal account. कैश अकाउंट में Account लिखेंगे debit। डेबिट साइड में टू गोपाल अकाउंट। और अमाउंट कितना लिखेंगे? नहीं, अमाउंट लिखेंगे 3,950। 3,950। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में क्या एंट्री डालेंगे? To To Gopal Gopal account. account। टू Gopal गोपाल। account और अमाउंट Debit 50 50 रुपीज डेबिट। ठीक है। गोपाल के अकाउंट में दो एंट्रीज आएंगी। कौन सी दो एंट्रीज आएंगी, कहाँ आएंगी? By cash account। By by cash account
Buy cash account by discount allowed. Discount allowed Very account. good. Buy cash account 3950, buy discount allowed account 50 rupees. Very good. अप्रैल 25 की एंट्री है वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट में कौन सा क्या करेंगे? To cash account. कैश कैश अकाउंट अकाउंट डेबिट 700. साइड में 700, कैश अकाउंट में क्या करेंगे? Buy wages account. बाय वेजेस अकाउंट बाय वेजेस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे 700 रुपीज। ठीक है। अप्रैल 27 की भी कंपाउंड एंट्री है राम टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। राम के अकाउंट में 2 एंट्रीज आएंगी, कहाँ आएंगी, कैसे आएंगी बताओ? Debit में आएंगी to cash account और to discount received account. रिसीव्ड अकाउंट। वेरी गुड। और कैश अकाउंट में कौन सी एक एंट्री आएगी? By Ram account 7,000. Ram account. बाय राम 7700 अकाउंट 7700 और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में भी एक एंट्री आएगी, क्या आएगी? बाय राम Buy अकाउंट Ram बाय राम 300। वेरी गुड। अप्रैल 30 की ट्रांजैक्शन है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट में कौन सी एक एंट्री जाएगी? टू कैश अकाउंट 1500 वेरी गुड। और कैश अकाउंट में क्या जाएगा? बाय रेंट अकाउंट 1500 वेरी गुड। Buy rent account. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड 11th क्लास। अब आपने ये सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी लेजर में। ठीक है। जब हमने ये सारी एंट्रीज पोस्ट कर दी, टोटल सारी एंट्रीज आ गई, उसके बाद हम बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये हमारा कैश अकाउंट है सबसे पहले। अब कैश अकाउंट में हमने क्या करना स्टार्ट किया? कैश अकाउंट में हमने, लेट मी टेक द पेंसिल फर्स्ट, पेंसिल। मैंने डेबिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का ये 2 आइटम टोटल कर ली मैंने। उसके बाद मैंने क्रेडिट साइड का पूरा ये टोटल कर लिया। फिर मैंने डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर दिया, तो मेरे पास बैलेंस अमाउंट आ गया। कहाँ है बैलेंस अमाउंट? ये है बैलेंस अमाउंट 87050 और इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन और दोनों साइड अब जो है वो इक्वल हो गई। कैपिटल अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं आया, क्यों नहीं? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, सॉरी। कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री थी क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीस की और डेबिट साइड में कोई एंट्री थी ही नहीं, तो बैलेंस क्या आ गया? इसका बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 1 लाख रुपीस। परचेजेस अकाउंट में हमारे पास क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं थी, डेबिट साइड में 2 एंट्रीज थी 5000 और 8000। 5000 प्लस 8000 13000 माइनस 0, क्रेडिट साइड का 0 माइनस किया तो क्रेडिट साइड का बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया? 13000 आ गया। क्लियर अबाउट इट? इस तरह से हमने सारे अकाउंट्स की बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद अब ये जो सारे बैलेंसेस हैं, ये सारे बैलेंसेस कहाँ चले जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे कैश अकाउंट, डेबिट में लिख देंगे 87050। कैपिटल अकाउंट लिखेंगे सेकंड, कैपिटल अकाउंट का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1 लाख रुपीस। फिर लिखेंगे परचेजेस अकाउंट, परचेजेस के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, एक्सपेंस होता है 13000, डेबिट में लिख देंगे। देन सेल्स, सेल्स का बैलेंस है 4000, क्रेडिट साइड में 4000 लिख देंगे। गोपाल, गोपाल के अकाउंट का हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है तो गोपाल का नील बैलेंस आ गया। राम, राम के अकाउंट का भी कोई बैलेंस नहीं है, पूरी मनी उन्होंने पे कर दी। ट्रेड एक्सपेंसेस का बैलेंस है, ट्रेड एक्सपेंसेस लिखेंगे, डेबिट साइड में 2000 लिख देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए गेन है, हमारे लिए इनकम है, फायदा है हमारा, वो हम क्रेडिट में लिख देंगे 300 रुपीज। वेजेस हमारे एक्सपेंस हैं, वेजेस को डेबिट साइड में लिख दिया 700। लुक हियर। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस है 50 रुपीज, डेबिट में लिख दिया। रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट को यहाँ पर लिख दिया 1500। इस तरह से हमने ये पूरा जो लेजर बनाया था, लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया। लुक एट दिस ट्रायल बैलेंस। मैम जिसमें बैलेंस कैरिड डाउन होता है वही उसी का ट्रायल बैलेंस बनता है। उसी से ट्रायल बैलेंस बनता है।
ओके मैम। जो हमने पहले क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन में उसने हमें बैलेंसेस लिख कर दिए हुए थे। अब हमने ये लेजर से बनाया है जिससे स्टूडेंट को पता चले कि अकाउंटिंग कैसे चल रही है। अकाउंटिंग कैसे चल रही है, पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन आती है, हमें पता चलता है कि ये परचेजेस हुई, ये सेल्स हुई, उससे हम जर्नल बनाते हैं, फिर हम जर्नल से लेजर बनाते हैं, फिर लेजर को जब हम टोटल करके एंड में बैलेंसिंग कर देते हैं, उन बैलेंसेस से हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जो भी हमारा लास्ट डेट को 30 अप्रैल को बैलेंस रहा है, उस बैलेंस के अकॉर्डिंग हमने ये ट्रायल बैलेंस फ्रेम कर दिया। एनी क्वेश्चन बाय एनी अदर स्टूडेंट? और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डोंट फील शाई इन आस्किंग द क्वेश्चन। कोई भी बैलेंस अगर क्लियर नहीं है, कोई अमाउंट क्लियर नहीं है, कोई और क्वेरी है तो पूछें। मैम इसमें हमने राम का क्यों नहीं लिखा ट्रायल बैलेंस में? क्योंकि उनका कोई बैलेंस नहीं बचा। राम से हमने परचेजेस करी 8000 की और हमने राम को कैश में 7700 दे दिया और 300 हमें राम से डिस्काउंट मिल गया। तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल है, तो जो बैलेंस सीडी है वो जीरो है, नील है, इसलिए हमने वो अकाउंट उसमें नहीं लिखा क्योंकि वो अकाउंट खत्म हो चुका है। हमने उस अकाउंट को नील कर दिया है, वो खाता खत्म हो चुका है, वो सेटल हो चुका है, इसलिए हमने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। इसी तरह गोपाल है, गोपाल को हमने 4000 के गुड्स सेल करे थे, गोपाल ने हमें मनी दे दी, कोई बैलेंस बचा नहीं है, इसलिए उन दोनों के अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं आए। ओके मैम। ठीक है, चलो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट बैलेंस क्वेश्चन। शीट और ट्रायल बैलेंस में क्या फ़र्क होता है? बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में क्या फ़र्क होता है? बैलेंस शीट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। बैलेंस शीट में जो होता है एक टी शेप में फॉर्मेट होता है हमारा। लुक एट, जैसे अगर मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ, बैलेंस शीट ये टी शेप में हमारी बैलेंस शीट बनेगी और यहाँ पर हमारी सारी लायबिलिटीज आएंगी और इस साइड पर सारी असेट्स आएंगी। बैलेंस शीट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर हमारे असेट्स और लायबिलिटीज के हमें बैलेंसेस पता चलते हैं। और ट्रायल बैलेंस है वो समरी है लेजर अकाउंट्स की। ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनती है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। और बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है एक पर्टिकुलर डेट को, उस डेट को हमारे बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज हैं और कैपिटल है और कितनी असेट्स हैं हमारे पास, वो हमें पता चलता है। और ट्रायल बैलेंस में हमें सारे अकाउंट्स की समरी पता चल रही है और बैलेंस शीट हमें ये शो कर रही है कि हमारे बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज हैं और कितनी असेट्स हैं और हमारे पास कितनी कैपिटल है। So, and balance sheet is a part of the double entry system, but trial balance is not a part of the double entry system. It is just made to check the arithmetical accuracy of the accounts, and it is helping us in making the trading account, profit and loss account and balance sheet. ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों किसी भी एंगल से कंपेरेबल नहीं है। मैम बैलेंस शीट में कैसे होता है डबल एंट्री सिस्टम? क्योंकि बैलेंस शीट तो डबल एंट्री सिस्टम से ही बन रही है और हमें वो सबको शो करनी होती है। बैलेंस शीट तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे बिजनेस में। अगर कोई भी हमारे पास गवर्नमेंट से आ रहा है या कोई और अथॉरिटी आ रही है तो वो हमारी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, या कोई कंपनी है तो वो बैलेंस शीट को पब्लिश करती है न्यूज़पेपर में शेयर होल्डर्स के लिए, सबके लिए दिखाने के लिए। ट्रायल बैलेंस तो जैसे सिंपल एक समरी है, जैसे अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं और चैप्टर पढ़ने के बाद हम नोट्स बना लेते हैं, अपने समरी नोट्स पॉइंट्स जॉट डाउन करके, उसी तरह ट्रायल बैलेंस है कि जब हमने सारे लेजर अकाउंट्स बना लिए, लेजर बना लिया पूरा, उसके बाद हर एक अकाउंट का कितना बैलेंस आ रहा था लास्ट में वो हम नोट डाउन कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस में। उस ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं।
मेन चीज क्या होती है जो बिजनेस में देखना चाहता है कोई भी, या जो बनानी होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गवर्नमेंट बोलती है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ अपना, या अपनी बैलेंस शीट दिखाओ, पर कोई भी आकर के हमारा ट्रायल बैलेंस देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि उसे ट्रायल बैलेंस से कोई मतलब नहीं है। ट्रायल बैलेंस तो हम अपनी हेल्प के लिए बनाते हैं, ताकि जिससे हम ट्रेडिंग और पीएनएल बना सकें या बैलेंस शीट बना सकें। ट्रायल बैलेंस में कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, हाँ। मैम ऑडिट के टाइम पे बैलेंस शीट और पी&एल देखा जाता है? ऑडिट के टाइम पे तो सारी ही चीजें चेक होती हैं। ऑडिट क्या है, जैसे जो हमने काम किया है, हमने जो अकाउंट्स में एंट्रीज करी हैं, उन सारी एंट्रीज को चेक करना, उसकी एडिटिंग करना वो चीज़ है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द ऑडिटर कि वो कैसे कर रहे हैं ऑडिटिंग का काम, पर सब कुछ सही होना चाहिए, सारी एंट्रीज को टैली किया जाता है। जैसे अगर मैंने परचेजेस 10 लाख रुपीस लिखी हुई है, तो मैं उसको क्रॉस चेक करूंगी एक्चुअली में वो जो मेरे वाउचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो 10 लाख है या नहीं है, और टैक्स की कैलकुलेशन ठीक से हुई है या नहीं हुई है, सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं।